As we all know, we are gathered here to celebrate National Science Day. This morning is very energetic morning to all of us and all science lovers because this day is celebrated in India every year on 20th February to mark the discovery of Raman effect by invention Indian scientist Dr. C.V. Raman. Therefore, he was rewarded for Nobel Prize in Physics in 1930. Every year, Indians celebrate this day to spread message about the importance of science in daily life. Invite to Tejan Ma'am to present their beautiful poem. As principal sir, all my dear teachers and my dear students, on the occasion of Science Day, I am going to present poem about the विज्ञान की परिभाषा। इसमें हम जानेंगे विज्ञान के बारे में। नीत नई खोज, नई आशा, अभिलाषा है। उसकी ना कोई बोली, ना कोई भाषा है। जी, विज्ञान की अलग ही परिभाषा है। ये देता है शक्ति बीमारियों से लड़ने की, ये देता है शक्ति सोच बदलने की। यही तो महामारियों में अंकुश लगाता है। हाँ, विज्ञान की अलग ही परिभाषा है। जी, विज्ञान की अलग ही परिभाषा है। ये हमें आदि मानव से आधुनिक मानव बनाता है, देता है सुख सुविधाएं, जीवन को सरल बनाता है। यही तो सब अंधविश्वास को मिटाता है। हाँ, विज्ञान की अलग ही परिभाषा है। जी, विज्ञान की अलग ही परिभाषा है। कभी विज्ञान की सैर कराता है, तो कभी स्पेसशिप में बिठाकर चांद तक हमें पहुंचाता है। प्रथम प्रयास में मंगल पर, तीसरे प्रयास में चांद पर पहुंचाकर भारत को चमकाया है। हाँ, विज्ञान की अलग ही परिभाषा है। जी, विज्ञान की अलग ही परिभाषा है। ये कर नया आविष्कार हमें आगे बढ़ाता है। वैज्ञानिकों के दम पर ही तो हर एक राष्ट्र लहराता है। और यही साधारण से बालक को राष्ट्रपति कलाम बनाता है। हाँ, विज्ञान की यही तो परिभाषा है कि जी, विज्ञान पृथ्वी पर दूसरा विधाता है। विज्ञान पृथ्वी पर दूसरा विधाता है। आप सब जानते हैं कि साइंस के डेवलपमेंट में हमारे जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया था। तो ऐसे ही अलग अलग हमारे जो साइंटिस्ट थे उनको अभी हम मिलवाने जा रहे हैं। बुलाना चाहूंगी सर सी.वी. रामन से। सर सी.वी. रामन। Every year since 1987, National Science Day is celebrated to honor the great Indian physicist C.V. Raman, who won the Nobel Prize of Physics for the discovery of Raman effect on 28 February 1928. He was known for his work in the field of light scattering. हमारे जो साइंटिस्ट जो आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, that is Sir Isaac Newton. Please welcome Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton is the father of physics. अच्छे से याद रखना, Sir Isaac Newton is the father of physics, who was also the mathematician, astronomer, revolutionized our understanding in the universe with the laws of motion and gravity. He is known for his discoveries in optics, that is for the white light, composition and calculus in the mathematics. Thank you, Isaac Newton. I would like to call our third female scientist, that is the Madam Marie Curie. Please welcome Madam Marie Curie. Madam Marie Curie was the French physicist and also chemist. She was famous for her work in the radioactivity. She was the first woman, remember,
carefully. She was the first woman to win a Nobel Prize. She won Nobel Prize twice in the both field physics and chemistry. She also remembered for her discovery of radium, polonium, and huge contribution to finding the treatment of cancer. Thank you, madam. Next scientist, that is the Mendel. Please welcome the biologist Mendel. He is a German biologist and scientist and meteorologist, mathematician also. Even though he was a biologist, he has discovered some discoveries into the mathematics field. Anyone can tell me the discoveries of Mendeleev? Why he is known for? किस बात के लिए वो फेमस है? हाँ? Inheritance की discovery के लिए. Very good. He is known for his contribution to give the law of Mendelian inheritance. Thank you. We are going to present our fifth famous scientist, that is the Albert Einstein. कोई बता सकता है इनके फेमस फॉर्मूला के बारे में? Very good. It is the E equal to delta mc square. What is the m? Very good. He gave the formula equal to delta mc square. It says that energy and mass are the same thing, just in a different form. He is also known for his discovery of photoelectric effect. He won the Nobel Prize for physics in 1921. Thank you, Albert. Abhi is a rocket scientist. At present, serving as the chairman of Indian Space Research Organization, also known as ISRO. Under his chairmanship, ISRO carried out the third Indian lunar exploration mission, Chandrayaan-3. Thank you. The next, that is the woman scientist who was also contributed into the Chandrayaan-3 mission, that is Madam Dr. Kalpana. She is serving as an Indian scientist, as a computer engineer in the ISRO. She served as the deputy project director of Chandrayaan-3. She also contributed for the second lunar mission, that is the Chandrayaan-2, and also for Mangalyaan mission. Thank you. So it was the introduction of the scientist. Thank you. Thank you all to God. Myself Kalai Pawra. Today I am presenting the role of blood. The study of blood is called hematology. Blood contains plasma. Hello everyone, I am Narmada Pawra and I am playing the role of plasma. Plasma has a yellow straw color. It comes in water 90 to 90% and protein 6 to 8%. Function of protein are albumin, globin and petrosal, the protein factor. Thank you. And it contains formel elements. RBC. Good morning. Good morning to everyone. I am Khushi Tadri and I am giving you some information about RBC, means red blood corpuscle cells. The color of RBC is red due to hemoglobin. The structure of RBC is biconcave. The count of RBC is 5 to 5.5 millions per cube millimeters. It is found in bone marrow. The function of RBC is transport CO2 and O2. The lifeline of RBC is 160 days or 16 weeks. Thank you. WBC. Good morning to all of you. Myself Vedika Patel. I am presenting the role of WBC, white blood corpuscles. So I want to give you some information about it. WBC is colorless. It has no color
And the lifespan of a WBC is 1 to 15 days, means 2 weeks. It has count 6,000 to 8,000 per cubic millimeter. The structure of a WBC is nucleated and in different ways. It is formed in bone marrow. The main function of a WBC is helping in immunity system. There are 5 types in WBC: neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes, and lymphocytes. Monocyte and lymphocytes are produce antibodies. Thank you. Platelets. Good morning everyone. I am Shikalisha and I am presenting the role of platelets. Platelets are collagens and the lifespan of platelet is 1 to 7 days, or we can say as 1 week. And the count of platelet is 1.5 to 3.5 lakh per millimeter. And they occur in bone marrow. And the function of platelet is to stop blood clotting. Thank you. Thank you. Thank you, Alisha. Now, the main organ in our cardiovascular system is vital for life. Its parts work together to move blood through your body in a coordinated way. Now, I would like to call Bhavita Sharma to present their bioactivity on human circulatory system. Bhavita. We are here to celebrate our National Science Day. Today, I am Bhavita Sharma from class 9. I am presenting the human circulatory, the main part of our human circulatory system, heart. Human circulatory system comprises heart, blood, and blood vessels. Human heart is myogenic. It is because contraction is initiated by sinoarterial nodes. Human heart has 4 chambers. Human heart has 4 chambers: 2 atria, right atrium and left atrium, 2 ventricles, right ventricle and left ventricle. Tricuspid valgus, these are the opening between right atrium and right ventricle. ऐसे दिखाओ. Tricuspid valgus, these are the opening between left atrium and left ventricle. Now, after the introduction of human heart, we will talk about flow of cardiac effort. Our heart beats 75 times per minute on an average of 72 beats per minute. Now, cardiac cycle. Cardiac cycle is the complete cycle of heart beats from first beat to the next. After that, we will talk about the sound of the heart. The sound of the heart is loop loop. Loop is the first sound produced by the heart when the tricuspid and bicuspid valves are closed, and loop is the second sound produced by the heart when the semicircular valves are closed. Thank you. Now, I would like to call Tejal ma'am and 9th class boys Dishant and Atharva to present their chemistry activity on magic in science. Dishant and Atharva. Respected principal sir, vice principal and dear students, आज मैं और हमारे क्लास 9, 6 और 7 के बच्चे जो है हम कुछ बेसिक एक्टिविटीज सिखाने वाले हैं. तो सबसे पहले अथर्वा विल टेक द वन सॉल्यूशन, नंबर 1 सॉल्यूशन. तो उसके पास एक नंबर 1 का सॉल्यूशन है, सबको दिखा बेटा. तो ये कैसा लग रहा है आपको? पानी की तरह दिख रहा है, ठीक है. उसमें दूसरा एक हम सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे जो कि एकदम पानी की तरह दिख रहा है. तो इसमें ऐड करो बेटा लिटिल सॉल्यूशन. Now the solution turns into the pink color. तो कोई रीजन बता सकता है यहाँ पर क्या कोई रिएक्शन होती होगी या ऐसी कोई कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें हम पिंक कलर डेवलप करते हैं? 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, एनीवन? यस युक्ता. फिनोक्सिलिन इंडिकेटर, ठीक है. फिनोक्सिलिन इंडिकेटर जो होता है वो बेस में कौन सा कलर देता है? पिंक कलर, ठीक है. So first solution that Atharva has taken, that was the NaOH solution, and second solution जो Atharva ने ऐड किया था, it was the indicator phenolphthalein. Indicator phenolphthalein को जब बेस में हम ऐड करते हैं, बेस that is the sodium hydroxide, उसमें जब ऐड करते हैं that is the pink color. अभी हो सकता है कि कुछ जो ढोंगी बाबा वगैरह होते हैं तो अगर कोई जादू वगैरह दिखाने वहाँ पर बता सकते हैं कि ये पानी है, उसमें ये दूसरा पानी डालेंगे, अगर ये पिंक हो जाता है तो मतलब आपके अंदर भूत हो सकता है, आपके घर में भूत हो सकता है, ऐसे बता सकते हैं. तो वहाँ पर ढोंगी बाबा वही एक्टिविटी को दिखाते हैं. तो आपको ये जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि NaOH में इंडिकेटर फिनोक्सिलिन डालते हैं
जो पिंक कलर था that got decolorized. अभी हमारे पास दूसरी एक्टिविटी है अथर्वा, प्लीज वहां पर जो सेकेंड इसमें जो पानी है टीकर में उससे अपना हाथ धो लो। क्या आप अभी हमारे नन्हे बच्चे के साथ हाथ मिलाओगे? अरे इन दोनों के हाथ पे तो आ गया है खून। ये जो एक्टिविटी है ये एक फेक जो ब्लड होता है उस फेक ब्लड को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो रिएक्शन होती है that is between the neutral FeCl3 solution and potassium thiocyanate, उन दोनों से मिक्सिंग से एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनता है जो कि ब्लड रेड कलर देता है। तो ये जो है एक्टिविटी जो है वो फेक ब्लड वगैरह जहाँ पर यूज अप होता है जैसे मूवीज वगैरह में वहाँ पर फेक ब्लड जनरेट करने के लिए यूज अप होती है। अब हमारी जो तीसरी एक्टिविटी है ठीक है मैजिक ऑफ साइंस की, उसमें हमारा पानी जो है वो थर्मोकोल खाने वाला है। प्लीज टेक द सॉल्यूशन। ईशान, अब जैसे कि थर्मोकोल को हम डीप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो आप देख रहे हैं कि हमारा पानी जो है वो थर्मोकोल की शीट दिखा रहा है। क्या और ये थर्मोकोल खा सकता है? देखो तो अरे वाह, और डिसॉल्व हो गया। तो इस एक्टिविटी में जो हमने लिया है ये थर्मोकोल की स्टिक है जो कि एक पॉलीस्टाइरीन से बनता है पॉलीमर से। फिर यहाँ पर फिर हमारे पास एसीटोन है। तो एसीटोन जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, पॉलीमर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए आपका जो थर्मोकोल की जो शीट थी वो एसीटोन के अंदर डिसॉल्व हो जा रही है। फोर्थ जो हमारी मैजिक एक्टिविटी है अच्छा तो प्लीज अभी ये सॉल्यूशन आपको कौन से कलर का दिख रहा है? पूरा व्हाइट कलर का, ठीक है। अब उसको जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं दैट विल चेंज द कलर। वेरी गुड अथर्व। अब आप देख सकते हैं कि अथर्व ने जब ये सॉल्यूशन को ऐसे शेक किया है कंटिन्यूअसली, अब लार्जर अमाउंट में ऐसे शेक करते जाएंगे तो ये डार्क ब्लू कलर में डेवलप होता है। अब ये एक्टिविटी है एक रेडॉक्स रिएक्शन की जिसमें हम यूज करते हैं ग्लूकोज पाउडर। ग्लूकोज पाउडर के अंदर हम ऐड करते हैं NaOH सॉल्यूशन और उसके अंदर एक इंडिकेटर मिथिलीन ब्लू हम ऐड करते हैं। मिथिलीन ब्लू जो होता है एक ब्लू कलर डेवलप होता है। अब इसके अंदर जो रिएक्शन होती है दैट इज द केमिकल ट्रैफिकिंग। ये जो मिथिलीन ब्लू है कभी ग्लूकोज के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो रिड्यूस हो जाता है तो पूरा व्हाइट कलर हो जाता है। जब NaOH के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो वो पूरा इसे चेक करेंगे तो वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो तब वो ब्लू कलर डेवलप करता है। तो इट वाज द एक्टिविटी ऑफ द केमिकल ट्रैफिकिंग, क्योंकि पहले वो NaOH के साथ उसके बाद ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है। So thank you, the boys group. Thank you everyone. The drama on science in daily life. 9th class girls. नाटक जो कि वैज्ञानिक और तकनीक पर आधारित है। देखते हैं।
आलू के बिना समोसा, वैसे ही विज्ञान और तकनीक के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अरे रुको बेटा, कहीं चीनी खाते हैं। क्यों माँ? तुझे पता है तेरी चीनी से मिश्रण से क्या होता है? हाँ माधुरी, अपने पेट में ठंडक हो जाती है और अपने पेट के एसिड की वजह से कम करती है, वही चीनी ऊर्जा का स्रोत से सभी कार्य करने की शक्ति मिलती है। चीनी से हमें मिलती है ऊर्जा। चीनी से हमें मिलती है ऊर्जा। नया सवेरा लेकर जब ये सूर्य देव जब आते हैं, सृष्टि का अंधकार मिटाकर नव जीवन दे जाते हैं। अरे यार कितनी देरी। अरे सोच के समझते क्यों? सूर्य को लगातार देखने से उसकी आंखों का सूर्य का प्रकाश हमारी आंखों की रोशनी के ऊपर पड़ता है, जिससे हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मोती बिंदु इत्यादि। सुबह और शाम के समय जब सूर्य का तेज आता है, उस समय सूर्य को देख सकते हैं। अच्छा, अरे इस बार तो शादी में बहुत मजा आने वाला है। बहुत मजा आया। देखो मेरे हाथों में कितनी अच्छी मेहंदी लगी। अरे बहुत आराम आई है। अरे ये मेहंदी क्यों लगाई जाती है? अरे शादी के दिनों में जब लोग व्यस्त होते हैं तो उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो मेहंदी स्ट्रेस दूर करने के लिए मेहंदी नेचुरल कूलेंट होती है और मेहंदी में एंटीसेप्टिक हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। अच्छा, और शादियों में हाथों और पैरों को हल्दियाँ भी लगाई जाती है ना? अरे हाँ, लेकिन क्यों लगाई जाती है? अरे हल्दी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि हल्दी में कल्चरिक तत्व होता है जो हमारे एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी के लिए जवाबदार होते हैं, जो हमारे चेहरे पे के दाग, धब्बे और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है, इसलिए हल्दी को लगाई जाती है। अरे अब चलो बहुत हो गई विज्ञान की बातें, अब जल्दी से शादी में जाते हैं। अब तक हमने हमारे वैज्ञानिक पूर्वजों की वैज्ञानिक सोच के बारे में देखा, अब हम वैज्ञानिक तकनीक के बारे में देखेंगे। आधुनिक तकनीक देखिए। अरे कहाँ जा रहे हो? कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए जा रही हूँ। अरे कॉलेज क्यों? आजकल का ज़माना तो ऑनलाइन ही चल रहा है। मेरे भाई के पास कंप्यूटर सिर्फ और तेरा फॉर्म पे ऑनलाइन ही चल रहा है। हमारी पढ़ाई ऑनलाइन, हमारा स्कूल ऑनलाइन, हमारी क्लासेस ऑनलाइन, एड्रेस ढूंढना ऑनलाइन, आजकल की शादियाँ ऑनलाइन। अरे अक्षरा आओ आओ। क्या हुआ? अरे बेटी क्यों हो? अरे यार तुमने क्या बताऊँ, 3-4 दिन से मेरी गाँव वाली वाइफ है, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका सलूशन है। क्योंकि कम है। ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटवर्क इफेक्ट की मदद से बनाते हैं। ये इमोशंस नहीं होते पर ये फीचर्स नहीं होते पर ये इंटेलिजेंस की मदद से हमारे सब काम कर देता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे घर में आधे लोगों को इंग्लिश नहीं आती। उसकी चिंता तुम मत करो, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोल सकता है। अरे वाह, फिर तो मैं अपना सारा काम आसानी से कर सकती हूँ। साइंस और तकनीक सीखेंगे। साइंस और तकनीक सीखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा भारत चांद पर पहुंच चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान से लॉन्च किया था, जिसने 23 अगस्त 2023 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसमें लगे रोवर ने वहां पर माइनर एलिमेंट्स की प्रेजेंस की खोज की थी। इस बात से हमें बहुत ही गर्व का अनुभव होता है। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। Please come on the stage and say something about Science Day. Vice Principal Sir, Senior Most Teacher and all my colleagues. Today we are gathered here on the behalf of the National Science Day, and we also aware about what is meant by science. So science is the study of
and knowledge about the physical world and the natural laws. So, first of all, 28th February 2024 is celebrated as a National Science Day, and first Science Day celebrated first time in 28th February 1987. And purpose of this National Science Day, on this day, C.V. Raman discovered the Raman effect. It represents the scattering of light and lot of importance of the science in our life, because science supports us, and science plays very important role in our development of the country and economic growth and many sectors and many fields. Science makes very easy life, and science in the religious, science in the religious, science in the resilience means in any pandemic, for example, corona pandemic, the rapid development of the vaccines, and the science in the education, lot of teaching technologies, ICT in the technologies are also developed, and science in the space means India sent a lot of space missions. We reached Chandrayaan, we reached the moon, and also in recent and yesterday's news, Prime Minister Narendra Modi nominated the 4 Air Force commanders. Gaganyaan mission, name of that nominated candidates: number 1, Prashant Krishnan, Ajit Krishnan, Yash Shukla, and Angad. It means that science plays very important role in our life, and so many in field of the engineering, field of medicine, how many deadly diseases are there totally eradicated through the science. So today we have to know that what is the importance of our life, what is the importance of science in our life, and what are the applications in our life. All the natural phenomena we should study inside your textbook. All the scientists, for example, Newton observed that how the apple is fall on their head. So we studied that and observed that. For example, Wright is discovered the aeroplane. So discovered the aeroplane through the observation of the birds. That's why you should always observe the natural phenomena and think about that. Science motivates the young minds to think about any natural phenomena. Thank you, have a nice day, and happy Science Day. To guide us about Science Day. सुप्रभात सभी को। Very minimum time this program conducted on this day. The curves which are presenting the street-like structure, that also is very audible. Madam approaches the science by the poetic way. The girls who presented the skit, that is also very important, and in day-to-day life we have to know all these things. Now, first of all, the day what we are celebrating today, that is by the name of Sri Ramanji, by the discovery in the field of life. आजू बाजू में जब भी देखते हैं तब आपके पास साइंस से कुछ घटनाएं घटित होती रहती है। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको ढूंढने के लिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो आपको उसके पीछे का साइंस मिल जाता है। हमारे अलग अलग चीजें में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उसके देखें आपको पता चलता है कि उसमें जो फ्लोरीन की मात्रा होती है, जो हार्मोन है, उस समय वो बढ़ जाता है। प्रकृति में आसपास जब भी कुछ देखेंगे और कुछ ऑब्जर्व करेंगे, कुछ समानताएं विषमताएं दिखती है और आप उसको भर कर हम महसूस करेंगे तो आपको समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब बातें आप लोग एक बात की हंसते थे, जैसे उन्होंने कहा
ऑनलाइन शादी आप सब लोग हंसने लगते हैं। इट मीन्स द ट्रूथ यू नो, आपको सत्यता मालूम है इसलिए आप क्यों कराते है ना। तो ऐसी हर बात की यदि सत्यता मान के यदि आप कहते हैं तो सबसे पहले तो अंधश्रद्धा का निर्मूलन हो जाएगा। श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन किस प्रकार से होनी चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। श्रद्धा आपकी दौड़त होनी चाहिए, मतलब बाय द एग्जामिनिंग वे यू कैन बिलीव ऑन दैट। बाय एग्जामिनिंग ब्लाइंडली आपके दादा दादी ने कहा इसलिए आप मान रहे हैं, ये बात गलत है। आपकी माँ ने कहा इसलिए मान रहे, आपके पिता ने कहा इसलिए मान रहे, फ्रेंड ने कहा इसलिए मान रहे। उसी को यदि एग्जामिन करके यदि आप अपना उसके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली यही आपका साइंस कहलाएगा। यहाँ पे यदि अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा, हाउ मेनी ऑफ यू आर श्योर अबाउट देयर क्लीन है? कितने लोग श्योर है अपने हाथ क्लीन है? रेज योर हैंड। कितने लोग हैं ये मानते हैं कि मेरा हाथ साफ है? कितने लोग मानते हैं आप लोगों को? तो मीन्स यू आर कैरिंग some microorganism with you। किसी ने भी हाथ पकड़ा नहीं किया। और एक एक्सपेरिमेंट करते मैंने पूछा था परितोष जी से कि आपके पास कुछ कंटेनर है क्या है ग्लास वाला, और जितने लोग श्योर है उन्हीं को बुला के पूछते हैं, उनको बोलते हैं कि यहाँ पे आप अपना हाथ पानी से धोइए। एक बच्चे ने हाथ धोने के बाद ही आपको पता चलता है कि पानी की क्वालिटी क्या है। तो हाथ साफ होना क्यों जरूरी है? बैक्टीरिया है, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया है। यदि वो दूध की बैक्टीरिया है तो ये भी कहलाती है, लैक्टिक एसिड का बैसिला है ना। और वही बैक्टीरिया यदि कोई और जगह पे कहते हैं कि फॉगिंग का डिजीज। Nowadays we are getting the petroleum product by harvesting the bacteria with the help of that bacteria। सिंगल सेल प्रोटीन यदि आप जानते हैं तो गाय का यदि आप 40 लीटर दूध लेते हैं और एक सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो मात्र 40 ग्राम लेते हैं, तो दोनों की बराबरी से है, दोनों की बराबरी से है। क्योंकि वन थिंग इज रिच विद द प्रोटीन, अनदर इज रिच विद द प्रोटीन, बट दैट रिक्वायर्स टू फीड द काउ एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन एक्सट्रैक्ट द मिल्क। मतलब ये सब बातें एग्जामिनिंग में करते हैं तो आपको बहुत सारी बातें आपके समझ में आती हैं। छींक क्यों आती है, खांसी क्यों होती है, नींद क्यों आती है, क्या बातें हैं। तो ये बातें डिस्कस करने से आपको बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। साइंस का उद्गम मतलब अभी के काल में हुआ ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी साहब ने एक पोस्टर प्रिंट करके लाया है, उसमें 600 पीसी से लेके साइंटिस्ट के नाम दिए जिन्होंने अलग अलग डिस्कवरी की। पोस्टर को जरूर देखना। व्हाट वाज दैट टाइम व्हेन देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ एनी सच मटेरियल और लेबोरेटरी, बट वी नो हाउ टू वर्क ऑन इट। कोई साधन नहीं था उनके पास में, फिर भी उन्होंने वो प्रयास किया और तभी से डिस्कवरीज का दौर शुरू हो गया। इफ यू रिमेंबर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन दैट पीरियड the bullock cart was built by people of those days। ना तो बुलक कार्ड बनाना अभी बहुत आसान है। मान लो 2 चक्के लेंगे, उसको एक एक्सेल बिठाएंगे, उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर रख देंगे, आपकी बैलगाड़ी तैयार हो जाएगी। लेकिन दैट वाज द टाइम व्हेन पीपल डोंट नो द एनीथिंग, एंड दैट टाइम द पीपल ऑफ दोज डेज डिस्कवर्ड द व्हील व्हिच आर हैविंग अराउंड देयर। ये उस समय की ये परम डिस्कवरी हो सकती है, क्योंकि जब किसी को कुछ मालूम नहीं और उस समय आप यदि गोल चक्का बिठा के किसी कार्ड को मूव कर रहे हैं तो उस समय की ये नोबल डिस्कवरी थी। तो ऐसी बहुत सारी डिस्कवरी आज भी बहुत सारे एरियाज पड़े हुए हैं। कुछ जीवों के बारे में आश्चर्यजनक जानकारियां हैं, तो उसमें भी आप कलेक्ट करते हैं, उसका संग्रह करते हैं, तो अभाव में जीने की बजाय उसके साथ किस तरह से बहुत अच्छे से जिया जा सकता है ये जानकारी आपको मिल सकती है। Now, one of the good example is nowadays we are living in the cement concrete jungle. Everywhere you can notice
आज यहाँ पे कुछ जमीन भी कुछ दिनों बाद पता करता है कि वहाँ पे एक अच्छी बिल्डिंग होगी। मीन्स ये इनका नजर क्या है, द एग्रीकल्चर एरिया इज गोइंग टू रिड्यूस एंड द population increases. Now, one of the example of the seeds I want to tell you, चने का एक दफ्तरी नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया उसको दफ्तरी वन करके एक चने का पौधा है। एक पौधे से लगभग 750 से 950 ग्राम चना उससे पैदा हुआ। But early recognize not possible. By using the 2-3 plants, we can get that amount. By utilizing the very less amount of the site, we are going to make sufficient food for the all. जो आपको समझना चाहिए, विषय साइंस का ही है। मुझे लगता है हम जब छोटे थे तब हम देखते थे कि गाय का गोबर से तरह भर गया, गाय ने छींक मार दी, गाय ने छींक मार दिया, लेकिन बैल आ गया, बैल दिख गया। अब ये आश्चर्य की बातें हो गई। You are not noticing anything. आपको बताना पड़ता है कि ये गाय है, दूध देती है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी बोलेगी दूध कहाँ से आता है, दूध डेयरी से आता है, दूध पैकेट में आता है, ऐसा बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि गाय से या भैंस से दूध आता है, क्योंकि ये दिख ही नहीं रहा है नजर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, गाय नहीं दिख रही, भैंस नहीं दिख रही। लेकिन दैट वाज द टाइम हम लोग कहते थे कि जूता भर गया, पैर भर गया, गोबर। आज तो प्रसंग ही नहीं आ रहा है, प्रसंग ही नहीं आ रहा। तो बात ये हो रही है कि दूध आज भी अपन डिमांड करके उतना हम लोग नहीं जाता है, डिमांड करके उतना तो नहीं जाता है, लेकिन आप काऊ तो देख नहीं रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ गया होगा, लेकिन इतना भी प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है? तो डेयरी से पता चलता है कि डेयरी जो मिल्क है वो संकलित करती है 1000 लीटर और बेचती है 500 लीटर। So where from that the extra income? Definitely is manufactured by using the chemical. ये दूध बनाने की बहुत सरल प्रक्रिया है, बहुत सरल प्रक्रिया। शाम को जो ऑयल डालो, उसमें एडिबल ऑयल डालो, थोड़ा सा उसको घोल के, थोड़ा सा ये पाउडर डाल दो, उसको घोल दो, आपको दूध बन जाएगा। विथ द फ्लेवर आल्सो से कोई दिक्कत नहीं। पनीर आप लोग जो खाते हैं ये भी बहुत एक कुछ गुणवत्तापूर्ण इतना होता नहीं है। वो यदि शेल्फ लाइफ के पहले उसका इस्तेमाल किया जाए तो ही ठीक है। यदि सही में दूध से बना हुआ मिल्क है, पनीर है, तो डेफिनेटली दैट इज अ वेरी पोटेंशियल। नाउअडेज साइंटिस्ट मेड द पनीर फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट एंड बहुत सिंपल प्रोसेस है कि एनीबॉडी कैन डू। मटन के दानों को रात भर भिगा के रखो, सवेरे उसका क्रश करके उसको मिक्सी में क्रश करके उसको निकालो, थोड़ा नींबू निचोड़ दो, इमीडिएटली यू कैन गेट द पनीर। मिल्क आदमी नहीं करते, आई डोंट नो एनी प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर द मिल्क। सो ये बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है और देश सेलिब्रेट करने का मतलब यही है कि यदि आप अपने आजू बाजू में एक चिकित्सक दृष्टि से यदि देखते हैं तब आपको पता चलता है कि वही आपकी श्रद्धा है, जिसको अपन डोड़स श्रद्धा कहते हैं। मतलब ओपन आई से बिलीव करने वाली बात है। कोई किसी ने बताया, किसी ने चमत्कार किया। एक मैडम ने बहुत अच्छा चमत्कार बताया और जो धार्मिक स्थलों पे जनरली देखते हैं कि मूंगा मोती बेचने वाले लोग आपको बोलते हैं कि पत्थर हाथ में लो और बकेट के नीचे उसको बिना थैले लगा हुआ है और उसको मालूम है, वो नाम पूछता है, बिना नाम बताए करके बताओ, वो नहीं कर पाएगा। वो पूछता है कि नाम बताओ, आपने बोल दिया आप राशि तुला के लिए ये पत्थर सटीक है, वो सारे पत्थर चेक कर लेता है, उसका पानी लाल नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो एक पर्टिकुलर पत्थर डालता है उसमें वो नाम चलने वाला हाथ लगा देता है और पूरा का पूरा पानी में बोलता है कि आपको ये सूट करना है। मतलब यदि श्रद्धा से यदि आप काम लेते हैं तो ये इस प्रकार से चौकस वृत्ति से ऐसा कोई चमत्कार कर नहीं सकता। एक और बहुत छोटी सी एक रिएक्शन है जो कि पॉपुलरली जो जादूगर या फिर जो साधु बाबा होते हैं वो करते हैं। और वो क्या करते हैं
कि पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर ग्लिसरीन डाल के छोड़ देते हैं, डेफिनेटली वो 1 मिनट के अंदर वो बर्न होता है, आग लग जाती है उसको, कोई रिएक्शन कोई लगा नहीं सकता, ऐसी आग कोई लगा नहीं सकता। जो बाबा लोग देखते हैं आप लोग, मोस्ट ऑफ द बाबाज आर कंप्लीटली फेल्यूर विद देयर थायराइड ग्लैंड। They will do the various abnormal things in day-to-day life and we can call it as चमत्कार। लेकिन इन बाबा का थायराइड ग्लैंड ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी which control the all orchestra of our body, what type is of that secretion। So ये सब वो उसको मेंटेन करके रखता है। तो इन लोगों में थायराइड की कमी होती है, वो झूला होता है, झूले में झूला लेगा, खाने बैठेगा, अच्छे फूड को बोलेगा कि ये मैं नहीं खाता, और कोई उसको कुछ भी हार्ड फूड में लेके जाएगा तो ही विल प्रिफर टू टेक इट। कुछ भी बड़बड़ाता रहेगा, सैल्यूएशन होता रहेगा, आंखें इधर उधर करेगा, लोग उसकी इशारों को कुछ कैलकुलेशन में बदल देंगे और नंबर लगा देंगे। बहुत सारे ऐसे काम करते 4 बल्ब बन जाते हैं, दैट विल स्प्रेड द मैसेज, फिर 100 आते हैं, 100 से 200 हो जाते हैं, और फिर बहुत सारे चमत्कार दिखाने लगे। और एक बात बताओ, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन प्रेजेंट डे में आपको ये सिनेरियो देखने को मिलता है कि कुछ क्वेश्चन बताते हैं, मतलब आप उनके पास जाते हैं और आपका वो पूरा कि आप ये क्वेश्चन पूछने वाले, वो क्वेश्चन पूछने वाले, वो क्वेश्चन। देखो जनरली बहुत बार ये होता है, सिटी में जब जाते हैं तो आप लोगों को कोई रास्ता याद नहीं रहता है, फिर आप क्या करते हैं, कुछ ईयर मार्क ध्यान में रखते हैं, हाँ ये रबड़ी वाला दुकान था, मिठाई वाला दुकान था, बस इसी के बगल में बच जाएगा, है ना। जनरली कॉमन पीपल को, क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती है, क्यों जरूरत नहीं होती है कि मैं नेक्स्ट टाइम कब आऊंगा तब मैं देखूंगा, आज मुझे जरूरत नहीं है, तो इसका उनकी मेमोरी में वो बात बैठती नहीं है, उनकी मेमोरी यूज करती है वो बात कि मुझे नहीं काम नहीं है फ्यूचर में, एक मन में भी विचार आ गया तो भूलना शुरू हो जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन वो बाबा आपको बताता है, देखिए जो ड्राइवर लोग होते हैं, ड्राइवर लोग एक ब्रेक कॉन्स नाम का पार्ट है, कॉन्स भरोली कहा जाता है, एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन उसको ब्रेक के पार्ट। ड्राइवर लोगों को सारे रास्ते बहुत सटीकता से मालूम है, उसके पीछे कारण है कि उनका जो कॉन्स है वो, मतलब जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हैं उसको बराबर वो याद अनफोल्ड हो जाता है उसके दिमाग। तो उन लोगों को, लेकिन एक सामान्य आदमी को उतना जानते हैं क्योंकि उनका वो कॉन्स वाला ऑर्गन बहुत एक्टिव रहता है। कुछ लोगों को ऐसे भी सेंसेस होते हैं कि दे कैन रीड इवन आफ्टर देयर क्लोजिंग आई, पढ़ पाते हैं, तो उनमें वो क्षमता डेवलप हो जाती है। एक सुहानी शाह है, यदि आप कभी सुनोगे उसका प्रोग्राम, तो आपका वो सारा बता देती है कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को आपकी लड़ाई कैसे होगी, कि आप उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा बता देती है। तो उसके पास एक इनहेरेंट ऐसा पावर है। अब यहाँ पे आप कहने लग जाओगे तुरंत कि इट इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड, बट इट इज नॉट सो। इट इज द ऑर्केस्ट्रा व्हिच इज प्लेड बाय द डिफरेंट हार्मोनिक्स। ये ऑर्केस्ट्रा है आपके शरीर में जो खेला जाता है। उम्र के साथ कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है, डिसाइडेड बाय दैट ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड under the influence of the trophic hormone, pituitary gland secretes the 6 different hormones. 4 यूरोहाइपोफाइसिस सिक्रीट करती है और 2 एडिनोहाइपोफाइसिस। उसके बाद वो टारगेट ऑर्गन पे एक्ट होती है और कितनी मात्रा में सिक्रीट होती है, मतलब आलुपिन का जो हेड है एकदम पॉइंटेड है, उतनी मात्रा में सिक्रीट होता है और दे विल एक्ट ऑन availability influence according to age. You can take the various things by following the eye. क्या आप ये नहीं बता पाएंगे कि आपको मान लो दिन भर आँख बंद करके रख दिया, कि आप ये नहीं जान पाएंगे कि अभी मेरे को भूख लगी है, मेरे को पानी पीना है, दिन हुआ लास्ट भी, क्या आप करने के बाद आप लोग पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे?
भूख लगा आपको जज होगा कि नहीं? पानी पीने का है आपको जज होगा, यूरिनेशन जाना है, डस्टबिन जाना है, आग बंद करने के बाद भी होगा ना। तो ये तो अपने में भी तो ये इनहेरेंट मैकेनिज्म है। एटलीस्ट near about 40% we are having the capacity to judge by what we are. आग बंद करके भी आप लोग जज कर सकते हैं। मान लीजिए लोग आपके कान को पूरा सील कर दिया, राइट से सील कर दिया कि उसमें कुछ जाना ही नहीं, साउंड में कुछ जाना ही नहीं। लेकिन मान लीजिए आपके डीजे लगा है और डीजे का जो वाइब्रेशन आता है, तो क्या आप नहीं बजा पाओगे कि ये कुछ वाइब्रेशन हो रहा है? जरूर पाओगे। गर्मा रही तो आप जज कर पाओगे कि आग बंद करने के बाद घर बैठकर कि आप पता कर पाएंगे कि आपकी आग जल रही है, जो आग गर्म हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं कि उसको समय पे डेवलप करने की जरूरत होती है। जगदीश चंद्र बोस जी जो हॉर्टिकल्चर साइंस कॉलेज से, उन्होंने ये बताया था कि प्लांट को भी सेंस होता है, प्लांट को भी सेंस होता है। म्यूजिक सुनाने से गाय भैंस भी बहुत अच्छा दूध देती है, प्लांट में भी अच्छी ग्रोथ होती है। ये सब बातें अपने साइंटिस्ट नहीं बताई। तो मैं आखिरी में ये बात कहना चाहूंगा कि आप जरूर विश्वास कीजिए, लेकिन उसको एग्जामिन भी कीजिए। क्या ये बात सही हो सकती है? किसी के बाबा के आशीर्वाद से किसी की शादी हो सकती है, किसी के बाबा के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ मंत्र है जो आपको शांति जरूर देते हैं, जैसे कि कुछ मंत्र दिए हैं उससे आपको शांति जरूर मिलती है, उसमें शक्ति होती है। वो क्या शक्ति होती है कि जब आप वो मंत्र बोलते हैं तो नासिकान नाखून से लेके हेयर तक उसके वाइब्रेशन जाते हैं और ऑटोमेटिकली आपको वो शांति आपको मिल जाती है। धर्म का प्रचार भी इसके ऊपर आधारित था। कुछ धर्म ऐसे आए कि जिन्होंने विज्ञान के ऊपर विश्वास रखा, उसने विज्ञान को माना लेकिन उसको साइड लाइन कर दिया। ये सब बातें हैं, आपको अपने मन से ही करना है। उसके मन में किसी की खलल नहीं होनी चाहिए, मेरी तुम्हारी या किसी की खलल नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहना यही है कि जो भी चीज को आप करें, एग्जामिन करें और उसके ऊपर अमल करें। म्हणजे याचा अर्थ असा की श्रद्धा ठेवा, पण डोळस श्रद्धा ठेवा, अंधश्रद्धा ठेवू नका। सगळ्यांना आपापले अधिकार आहेत, त्या अधिकाराप्रमाणे वागा। सगळ्यांना आपापले स्वातंत्र्य आहे, आपापल्याप्रमाणे राहा। माझ्या वाचनातून मला कोणालाही आणि कोणाचंही असं विचलन करायचं नव्हतं आणि करणारे नाही। सगळ्यांना आपापले अधिकार आहे, त्याच्याप्रमाणे वागायचं, करायचं। म्हणणं एकच आहे की श्रद्धा ठेवा, डोळस श्रद्धा ठेवा, अंधश्रद्धा ठेवू नका। धन्यवाद। To motivate